શિષ્ય ગુરુને પગે લાગે, શિષ્ય ગુરુનું સન્માન જાળવે, પરંતુ અમદાવાદની સાલ કોલેજમાં તેનાથી તદ્દન ઉલટા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા, જ્યાં શિષ્ય ગુરુને નહીં પણ ગુરુ શિષ્યને પગે લાગતા જોવા મળ્યા। સાલ કોલેજમાં એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓની ખુલ્લી દાદાગીરી જોવા મળી। એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓએ ન જાળવી ગુરુ શિષ્યના સંબંધની ગરિમા। દાદાગીરી પર ઉતરી આવેલા એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓએ આચાર્યને એટલી હદે મજબૂર કરી દીધા કે તેઓ બે હાથ જોડી પગે લાગવા માંડ્યા। સાલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની હાજરીની આ બાબતે એબીવીપીના અક્ષત જયસ્વાલ સહિતના નેતાઓ આચાર્યની કેબિનમાં રજૂઆત કરવા ગયા હતા। અહીં શાંતિથી રજૂઆત કરવાની વાત તો એક બાજુ રહી, પણ એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓની રકઝક અને દાદાગીરીથી કંટાળેલા આચાર્ય બે હાથ જોડી પગે લાગવા માંડ્યા। ગુરુ અને શિષ્યની ગરિમા અને સન્માનને લાંછન લગાડતો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ ગયો। લોકો સુધી વિડીયો પહોંચતા એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓની દાદાગીરી પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। ત્યારે આ ઘટના બાદ તે લોકોએ આચાર્યની માફી માંગી હોવાની વાત આગળ ધરી પોતાનો લૂલો બચાવ કર્યો છે। એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓની દાદાગીરીને લઈને અનેક સવાલ પણ ઉભા થયા છે। એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓની કરતૂત કેટલી યોગ્ય છે? એબીવીપીની આચાર્ય દેવો ભવની ભાવના ક્યાં ખોવાઈ ગઈ? કેમ એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓ ભાન ભૂલ્યા? ગુરુ સમાન આચાર્ય સાથે આવું વર્તન કેટલું યોગ્ય? કેમ આચાર્યને પગે પડવા મજબૂર કરાયા? શું એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓએ જરાય લાજ શરમ ન રાખી? કેમ એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓને ન જાળવી ગુરુની ગરિમા? ત્યારે સાલ કોલેજના આચાર્ય સાથે અમારા સંવાદદાતાએ વાત કરી હતી, સાંભળીએ। અમદાવાદની સાલ કોલેજમાંથી શૈક્ષણિક જગતને શર્મસાર કરે તેવો વિડીયો વાયરલ થયો છે અને વાયરલ વિડીયો થયા બાદ અનેક વિવાદો અને સવાલો પણ ઊભા થયા છે કે જ્યાં આગળ જે હાજરી છે તેની જે પ્રક્રિયા છે અને તેને લઈને જે અમુક વિદ્યાર્થીઓને શાળાના જે કોલેજના આચાર્ય છે તેમણે તેમના પાસે બોલાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ સમગ્ર મામલો બીચક્યા બાદ એબીવીપીના કેટલાક વિદ્યાર્થી આગેવાનો પણ આવ્યા હતા। સમગ્ર જે આગેવાનો છે તે આવ્યા બાદ જે આચાર્ય છે તેમની કેબિનમાં હોબાળો થયો હતો અને ત્યારબાદ જે આચાર્ય છે તે વિદ્યાર્થીના પગે પડતા હોય તેવો વિડીયો સામે આવ્યો હતો અને તેની સામે ખળભળાટ પણ મચી ગયો હતો। ત્યારે આ સમગ્ર મામલાની શું હકીકત છે, શું પ્રક્રિયા સમગ્ર જે થઈ રહી હતી, કેમ આ પગલું આચાર્ય ભરવું પડ્યું, તેના માટે આપણી સાથે हाजिर છે खुद आचार्य, तेमने पूछीशू। मैडम, कल का क्या इंसिडेंट था, क्यों आपको ये कदम उठाना पड़ा, क्यों आपको किसी स्टूडेंट के पैर छूने पड़े? देखिए, ये रूटीन प्रोसेस थी मेरी। रूटीन प्रोसेस में ऐसा होता है कि ये डिप्लोमा है तो 3 साल का कोर्स है, मतलब 6 सेमेस्टर होगा। सो एवरी सेमेस्टर एवरी मंथ हम जो अटेंडेंस पोस्ट करते हैं बच्चों की, वो पेरेंट्स को बताया जाता है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है। और इनके मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। सो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के पहले जिन बच्चों की अटेंडेंस कम है, दिस इज अ रूटीन प्रोसेस। तो उस रूटीन प्रोसेस के अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों को अपनी केबिन में बुलाया था। एचओडीज मेरे साथ बैठे हुए थे, उनके साथ डिस्कशन हो रहा था। उनको सिर्फ मोटिवेट ही किया जा रहा था कि आपको इस तरह से काम नहीं करना है बिकॉज आप फेल हो जाओगे। सो दिस इज आवर ड्यूटी। एंड हम सारे जितने भी साल एजुकेशन में फैकल्टी हैं, टॉप टू बॉटम जितने भी हैं, सारे एकेडमिशियन, प्योर एकेडमिशियंस हैं। हमारा सिर्फ एक एम होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छे ट्रैक पे लेके जाना। और सारे बच्चों को यही कहना है कि भाई आप जिस भी सेमेस्टर में, सारे सेमेस्टर आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप उसको क्लियर करते जाओ। सो एक ही बार में सेमेस्टर 3 साल में आप खत्म कर दीजिए, आगे जाइए, डिप्लोमा से डिग्री लीजिए, आगे आप कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, आपको जहां जाना है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी गलत प्रवृत्ति में आप मत पड़िए। उसी अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों को बुलाना चालू किया था। कुछ पेरेंट्स भी आए थे। पेरेंट्स आते हैं सारे, उन्होंने ये प्रेज किया है कि साल एजुकेशन में जो चीज चल रही है ये बहुत अच्छी है और इस चीज को आगे आप कंटिन्यू रखिए। ये किसी कॉलेज में हमें देखने नहीं मिलता है। साल एजुकेशन में यदि ये हो रहा है तो बीइंग पेरेंट्स उनकी भी ड्यूटी होती है जानना, उनके भी जो साल एजुकेशन में कल हुआ वो भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि कल जो हुआ उसके लिए आपका क्या कहना है, क्यों आपको एक स्टूडेंट के पैर छूने पड़े? देखिए, पैर हम लोगों ने छुए नहीं है। उसमें ये था कि जिस बच्ची को हम लोगों ने बुलाया था, शी इज द सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। उस बच्ची को हमने यहाँ पर बुलाया था। यहाँ पर
मेरे साथ जो फैकल्टी बैठे हुए थे, शी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हियर, एंड उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी जिस हिसाब से वो प्रिंसिपल से वो बात कर रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था उसे कि प्रिंसिपल आपके एज में बहुत बड़े हैं, आपकी मम्मा से भी एज में बड़े होंगे वो, तो इस तरीके से बिहेवियर नहीं होना चाहिए था। ये सारा उनका जो बातचीत हो रही थी वो गुजराती में हो रही थी, तो गुजराती में उन्होंने ये कहा था कि इतने बड़े हैं तो पगे लागवा जोइए, राइट। और पगे लागो तो ये कहा ही नहीं है हमने, जो मुझे ये जानने मिला पगे लागो मतलब पैर पड़ो इंस्टेंटली, बट उस बच्ची ने आके पढ़े। उनका यही कहना था कि इतने बड़े हैं तो पगे लागवा जोइए, मत उनका स्थान ये है कि उनके तो हमें पैर पड़ने चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हो तो ये गलत है। जब एबीवीपी के सामने शायद उसने गलत तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट किया होगा, एबीवीपी आया, दे वर वेरी एग्रेसिव, स्लोली वो कूल डाउन होना चालू हुए, चीजें बढ़ रही थी, तो वो प्रोफेसर और हमने यही देखा कि भाई चीजों को मत बढ़ाओ। वो बच्ची डर गई थी। उस बच्ची को हमें डराने के लिए हमने नहीं बुलाया था, उस बच्ची को समझाने बुलाया था कि आपकी अटेंडेंस कम है, बच्चे एग्जाम्स आ रहा है, आपके पेरेंट्स से भी हमें बात करनी है। शी वॉज एग्रीड कि हाँ मैं पेरेंट्स को बुला रही हूँ, मैं अभी कॉल करूंगी। उस बीच में तो ये सारी चीजें हो गई, वो बहुत डर गई थी। यू कैन चेक इन दैट वीडियो भी आपको पता चलेगा कि वो बच्ची डरी हुई है। उस बच्चे को डर से हमें बाहर निकालना था कि डराने के लिए हम लोग नहीं बुलाते हैं, आपको हम लोग मोटिवेट करने के लिए हम लोग केबिन में बुलाते हैं। आप किसी भी फैकल्टी से मिल सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से बात करिए, तो यही चीज है कि हम लोगों ने हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो एकेडमिक्स हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में हम लोग आगे ही बढ़ाते हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने सिर्फ हाथ जोड़े थे कि बच्चे हमसे भूल हुई है, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है तो हम लोगों ने ज्यादती नहीं की है, पैर हम लोगों ने नहीं छुए हैं। मैडम, एबीवीपी का जो अक्षत जायसवाल नाम आ रहा है सामने, वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पे आके चिल्ला रहा था, वो आपको प्रेशराइज कर रहा था, उसके बाद आपने पैर छुए। कौन है ये अक्षत, उसका क्या यहाँ पे हिस्ट्री रहा है? देखिए, अक्षत जायसवाल हमारा ही डिप्लोमा का ही स्टूडेंट है, वो डिटेन्ड है, लेकिन हाँ उसने प्रेशराइज हम लोगों को नहीं किया है कि आप पैर छुइए, उसने हमें प्रेशराइज नहीं किया है। वो आया है, एबीवीपी में था, वो डेफिनेटली एग्रेसिवली उसने बात की है। जो पैर तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने छुए ही नहीं है, सिर्फ बो डाउन ही किया है, हाथ जोड़े हैं उस बच्ची के सामने, बिकॉज वो बहुत डर गई थी। उस डर को हटाने के लिए उसके सामने हाथ जोड़े कि बच्चे आप शांत हो जाओ, ये चीज नहीं है। उस चीज का डर को हटाने के लिए हम लोगों ने ये चीज किया है। मैडम, कॉलेज प्रशासन की तरफ से आगे क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या वो बच्चों के सामने एक्शन लिया जाएगा? क्या कार्यवाही होगी? डेफिनेटली मैं अभी मैनेजमेंट से भी मिलूंगी। डॉक्टर रुपेश वसानी सर जो हमारे साल एजुकेशन कैंपस के डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कलेक्टिवली जो डिसाइड होगा, डेफिनेटली यू विल लेट टू नो। તો જે પ્રમાણે સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી, ત્યારબાદ જે કોલેજ છે તેના આચાર્યનું ચોક્કસથી એવું કહેવું છે કે અમે પગે નતા લાગ્યા, અમે બો ડાઉન કરેલું હતું। એટલે એક પ્રકારે કહી શકાય કે એક ડિટેન કરેલો વિદ્યાર્થી એબીવીપીનો નેતા બને છે અને ત્યારબાદ કોલેજમાં આવીને તે હોબાળા કરે છે અને આ પ્રકારનો જે સમગ્ર વિડીયો છે તે વાયરલ થાય છે અને સમગ્ર જે ઘટના છે તે પ્રકાશમાં આવે છે। ત્યારે ચોક્કસપણે એક પ્રકારે કહી શકાય કે જે શાળા પ્રશાસન, જે કોલેજ પ્રશાસન છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક જે નેતાઓ છે તેમનો બચાવ કરતા હાલ નજરે પડી રહ્યા છે। કેમેરામેન ઇમરાન શેખ સાથે રોનક વર્મા, TV9 અમદાવાદ। તો હાલ આચાર્યની સ્પષ્ટતા પણ સામે આવી છે અને આખી ઘટનામાં વિદ્યાર્થીની ડરી ગઈ હોવાની વાત આચાર્ય કહી રહી છે અને માફી માંગવા આચાર્ય મજબૂર બન્યા તે દ્રશ્યોમાં જોકે દેખાઈ રહ્યું છે।